हरिद्वार के चंडीघाट पर बाबा हठयोगी जी आश्रम में भारत, भूटान, नेपाल और वियतनाम के राजदूत पान शान चाउ पधारे, जहां पर उनका भव्य स्वागत शिव शक्ति सेवा समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुलाब और गुलदस्ता देकर किया। उनके साथ वियतनाम से और भी सहयोगी आए थे, उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। उनके जलपान के बाद शिव शक्ति सेवा समिति ने उनसे अपनी समिति के बारे में चर्चा की और उन पर आधारित बनी एक शॉर्ट फिल्म भी उन्हें दिखाई और अपने सेवा कार्यों को बतलाया। बाद में उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको ये भी बता दें कि शिव शक्ति सेवा समिति हरिद्वार में ही नहीं अभी तो पूरे राज्य में एक ऐसा कार्य कर रही है जिसकी सराहना जितनी भी करे उतनी कम है। गरीब बेसहारा लोगों की मदद से लेकर उनकी शिक्षा, दीक्षा और शिक्षा में भी कंप्यूटर जैसी टेक्निकल शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। बाल संरक्षण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक कार्य करने का काम ये समिति कर रही है। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि हठयोगी जी आश्रम में लगातार समिति की ओर से अन्न क्षेत्र का कार्यक्रम चलता रहता है और कोरोना काल में भी समिति ने समाज की सेवा करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की समाप्ति पर बाबा हठयोगी जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत गीता को उन्हें सप्रेम भेंट किया गया, जिसे पाकर स्वयं श्री चाउ वे उनके सहयोगी भारत, हरिद्वार और खासकर आश्रम की बड़ी प्रशंसा करने लगे। राजदूत पान शान चाउ अपने एक निजी दौरे पर थे। बाबा हठयोगी जी का आश्रम कार्यक्रम के बाद वियतनाम से आए लोगों ने मां गंगा की आरती में भी भाग लिया। परिपाटी न्यूज के संवाददाता जतिन शर्मा ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमें भारत के लोगों को बहुत प्यार मिला है और हरिद्वार जैसी पावन जगह को हम सदैव प्रणाम करते हैं। ऐसे कोरोना काल में भी भारत ने पूरे विश्व की मदद की है और अपने देश में नियम बनाकर बीमारी से लड़ने का हौसला दिया है। आइए सुनाते हैं कुछ अंश। Also, myself is Đỗ Thanh Hải. I'm the Deputy Chief Commission. And also we have the head of the political section of the embassy. We also have the representative from the trade office. We also have the representative from the defense attaché office. And so we also have the office of the consular section. So we have also the sound technologies and all the part of the embassy. And I have to say, on behalf of the embassy, we are very thankful for your warm, hearted welcome and also your hospitality. And from the embassy, we know that we have done an excellent job for the people. And I think the population has we learned from the video and also from our friends that it also have a lot for the poor, also the children, and also to increase the awareness of the people. I think that on the part, it's important for us to recognize the contribution for the community. At the same time, I think that it's very important to show the solidarity between our two nations. As mentioned that we have so many similarities. We also have the red color like this with our flag, and also I think that it makes you very feel warm when you live here. And also especially the hospitality make us feel like home. And on that we are thankful and we wish you good health, and also the people of Haridwar will be prosper and live it continue with peace and tranquilities and prosperities as well. Are you seeing how you visit and how you feel about in this situation? What's the upcoming plan as this to visit here? Is Mr. Babaji Hachyogi, and as we are spreading the spiritual messages to all of us. But we will strengthen this tie-up with bilateral relationship. I think that we have to undergo the very challenging time together. I think both countries and also the cities of Haridwar. And of course I know that the people will also face a lot of difficulties because of the pandemic. But I think that India in general and so Haridwar in particular has shown a great resilience to face up the pandemic and also to live through that and also to become a very successful land. And on that, I mean the people helping each other. I think that it creates a spirit of solidarity and that can open to all. And of course on that, India has made a lot of contribution to the world to fight the pandemic.
also the people in Haridwar as well. That we strongly believe that Indians will come back strongly, and also the people of Haridwar will become safe and sound, and also to contribute also to the common struggle against the pandemic. Because of the spiritual that the Indian give, and also that spirit will help the people of the pandemic. इस मौके पर परिपाटी न्यूज मीडिया की ओर से भी उन्हें परिपाटी न्यूज सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ हरिद्वार के वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश लाल पाभा ने भी प्रतीक चिन्ह देकर राजदूत को सम्मानित किया। कार्यक्रम में देवेंद्र शर्मा, भोला सिंह, ममता सेंगर, मुकुल बंसल, डॉक्टर महेंद्र आहूजा, सुयश बालिया, संदीप सिंगला, राजेश बब्बर, श्याम, अधीर कौशिक के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं वो जो इनके संपर्क में इनके उसमें रहते हैं, तो हम लोगों ने इनको जो है हरिद्वार के लिए विजिट के लिए इनवाइट किया था। तो आज उसी विजिट पे जो है 2 दिन के लिए हरिद्वार आगमन पर थे और हमारी समिति द्वारा निरंतर जो गतिविधियां समाज सेवा में जनहित में की जाती हैं उन सब की हमने इनको विस्तृत जानकारी ली है। अलग अलग सदस्यों द्वारा अपने परिचय में जो जिस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं, कोई इंडस्ट्री से करते हैं, दूसरे कोई किसी बिजनेस से करते हैं, तो इस तरीके के सभी विषयों के ऊपर उनको बहुत अच्छी चर्चा की गई और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का आगमन। कृपा से 2 जुलाई 2014 में शुरू की थी। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं उनको शिक्षित करना था। हमारा ऐसा मानना है कि अगर हमारा देश, हमारा समाज शिक्षित हो जाता है तो हमारे देश की समृद्धि उसके ऊपर निर्भर करती है। हमारे देश में जितने भी जो है अत्याचार कहें या जो है जितने भी समाज के अंदर कमियां होती हैं वो काफ़ी दूर होती हैं अगर शिक्षा है तो। इससे शुरू किया था। उसके बाद हमने 32 प्रकार की एक्टिविटियां हमने की हैं 6 साल के अंदर। 32 प्रकार की एक्टिविटियां और 230 एक्टिविटियां हमने आज तक की हैं। वियतनाम के राजदूत यहाँ आए थे और जिस तरह से शिव सेवा शक्ति समिति नर में नारायण, दरिद्र नारायण में नारायण, लोग कहते हैं नर नारायण कहते हैं ना, लेकिन शिव सेवा समिति का उद्देश्य है दरिद्र नारायण की सेवा। जहाँ दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे तो भगवान की साक्षात सेवा होगी। इस तरह का शिव शक्ति समिति का उद्देश्य है और उसी कार्य को लेके ये लोग जनहित के जो कार्य हैं, गरीबों को जो वाकई गरीब है और जिसको आवश्यकता है उन लोगों को ये उसकी सहायता भी करते हैं, उसको भोजन भी करवाते हैं, उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं, उसकी मेडिकल फैसिलिटी भी देते हैं और एम्बुलेंस इत्यादि से भी उसकी सेवा करते हैं। तो अनेक ऐसे कार्य शिव सेवा शक्ति समिति के जो जन सेवा के लिए करते हैं। उसी के माध्यम से आज ये वियतनाम के राजदूत भी आए थे, उनको भी अपनी जो प्रोग्रेस और जो कार्य करते हैं उनकी रिपोर्ट दी। ये इनका है। चंडीगढ़ हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ जतिन शर्मा की एक खास रिपोर्ट।